Story that's been making headlines since January this year, which is when the protests initially began. Now, according to sports ministry sources, all that has been done for the protesting wrestlers has been done, and nothing more could be done to make them happy. The sports ministry source says that the ministry spent over 66 lakh rupees this year alone on three protesting wrestlers, Sakshi Mallik, Bajrang Punia, and Vinesh Fogart. But according to the ministry, Vinesh Fogart did not participate in any trial or competition this year. Sakshi Mallik, who made a devastating decision and hung up her wrestling boots a few days ago, reportedly did not participate in any competition or trial this year. Bajrang Punia, who was granted direct entry to the Asian Games and finished fifth, reportedly did not participate in any trial this year either. This information is all according to the sports ministry source. Now remember, the wrestlers have been protesting since January this year against the former WFI chief Brij Bhusan Singh in connection with sexual harassment allegations. Now Brij Bhusan was removed as the WFI chief but remains in MP. Remember, protests have been taking place since January this year, but right now we're going to cross over to my colleague Krishma to get us more on what sports ministry sources have been saying. Krishma, tell us more about the reasoning that the sports ministry is giving when they release these numbers, this expenditure that's been put on the wrestlers this year alone, and they've also been giving numbers since 2016 as well. Yes, absolutely. The sports ministry sources have revealed the amount spent on wrestlers overall and also for the year of 23-24. And if we talk about this particular year, 32 lakh rupees have been spent on Bajrang Punia, over 15 lakhs on Sakshi Mallik, and over 18 lakhs on Vinesh Fogart, which is a total of 66 lakhs plus on these three wrestlers. They were granted direct entry to big tournaments, Asian Games. Of course, Vinesh Fogart withdrew because of a medical surgery, and Bajrang Punia finished fifth in Asian Games. Sakshi Mallik did not compete or be in any of the trials this year. So this is what sports ministry sources are saying, that we have not held back on spending money on these wrestlers, even though they were sitting at protest from the starting of the year. And remember, there have been numerous meetings between ministry officials, SAI officials, and the wrestlers. One of the demands that the wrestlers had was that there should be a free and fair elections. As per ministry sources, they say that was done. There was a UWW, which is the International Body for Wrestling Federation of India. Observer was there who passed on to these elections. And now what we're given to understand is that the recognition of Wrestling Federation of India is going to be given back. Remember, 2024 is also an Olympic year. So all of this becomes very, very important. Sakshi Mallik has announced her retirement. Bajrang Punia has returned his Padma Shri. He left it lying at Kartavya Path before the police picked it up. We'll have to wait and see where all of this is actually going to end. Krishma, thank you so much for joining us and giving us all of those details. We're now going to be welcoming our guest to the broadcast. We have Mr. Mukul joining us, who is a former international wrestler. Mukul, thank you so much for speaking to us here at Mirror Now. पहले आप अपना रिएक्शन दे दो कि कई दिन पहले साक्षी मलिक ने रेजिग्नेशन दिया, रिटायरमेंट किया रेसलिंग से. आप इस डिसीजन कैसे देखते हैं? ओके भाई. Mr. Mukul, can you hear us? We seem to be having some audio issues. We'll try to reestablish that connection with our guest. That was Mr. Mukul, who's a former international wrestler. But remember, when it comes to the latest in the saga between the wrestlers and the center, what's coming to light now is, according to sports ministry sources, what they have done reportedly is they have actually put out a list of expenditure that's been done on three of the protesting wrestlers, Vinesh Fogart, Bajrang Punia, and of course Sakshi Mallik. Now remember, when it comes to some of the latest developments, just a few days ago, Sakshi Mallik had made a big decision, and a photo of her has since gone viral of her in tears, placing the microphone down. She had actually hung up her wrestling boots and announced her retirement. Beyond that, Bajrang Punia has also returned his Padma Shri. All right, now we are trying to reestablish that connection with our guest. Mr. Mukul, if you can hear us now, आप अपना reaction कई दिन पहले साक्षी मलिक ने उनका रिटायरमेंट अनाउंस किया गया है. आप उन पे आपका पहले रिएक्शन दे दो, प्लीज.
पहला रिएक्शन तो मेरा यही है मैम, ये बहुत गलत हुआ है। अभी बहुत कुश्ती बाकी है साक्षी जी में, और रोते हुए जो विदाई हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये महिला पहले ओलंपिक में मेडल लाने वाली पहली महिला है जो कुश्ती में। इनकी विदाई बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए थी, बहुत हंस के होनी चाहिए थी। बहुत ही दुख की बात है कि ऐसे इनकी विदाई हुई है, और इनको अभी भी सीरियस नहीं लिया जा रहा। सब राजनीति की ही कर रहे हैं, यहाँ से वहां बातों को घुमा रहे हैं, लेकिन जो इनकी जो असली बात थी वो नहीं सुनी गई। और जितने भी जो जो इनके मुद्दे थे, जो इनको हाँ भरी थी, जो इनको वादा किया था, वो सब वादा खिलाफी हुई है, इनके साथ जाती हुई है। और ये देश का नाम रोशन किया है इन लोगों ने, तीनों खिलाड़ियों ने। लेकिन आज ये कह रहे हैं कि भाई ट्रायल नहीं ली 1 साल से। ठीक है, ये गलत है, ये रूल के खिलाफ कभी भी नहीं गई। आपको एक प्रकरण याद होगा सुशील पहलवान का और नरसिंह यादव का, उसमें जब स्टेरॉइड उन्होंने नरसिंह यादव ने ले रखी थी, उसके बाद भी उसको वहां पर ओलंपिक में भेजा गया, और उस पर कितना पैसा खर्चा किया गया। उसको वहां से फिर वापस भेजा गया, वाडा ने भी उसको मान लिया कि उन्होंने बिल्कुल खून में स्टेरॉइड ले रखा है। तो जब जाके वहां कितना खर्चा हुआ था। तो अभी जो मुद्दे हैं ना, उन मुद्दों से भटकाया जा रहा है बस, और कुछ भी नहीं है। आपको क्या लगता है कि अभी क्या होना चाहिए, सेंटर को क्या करना चाहिए? सेंटर को यही करना चाहिए, जो इनका करीबी जो क्या नाम अध्यक्ष बना है संजय सिंह, इसको क्या नाम है तुरंत क्या नाम हटा दीजिए चाहिए पद से। और जो इनके साथ वादा किया था कि एक महिला कैंडिडेट लेकर आओ फेडरेशन के जो अध्यक्ष पद के लिए, इन्होंने महिला के नाम कैंडिडेट भी दी। वो ओलंपिक में वो क्या नाम है कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडलिस्ट है अनीता सोरान जी, और इन्होंने खुद बोला था कि वोट भी हम डलवाएंगे। क्या नाम है जो जो अध्यक्ष बनेगा ते जो महिला ही बनेगी, क्योंकि महिला अगर अध्यक्ष बनती तो महिला का शोषण तभी तो रुकता। लेकिन अब तो और ज्यादा ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाएगी। ये क्या नाम है, जिसको चाहेंगे उसको भेजेंगे, जिसको नहीं चाहेंगे उसको नहीं भेजेंगे। एक शोषण के नाम है। ये क्या नाम है जो हुआ था जंतर मंतर पे धरना, इसी के लिए तो हुआ था कि कुश्ती को पाक साफ रखना है। यहाँ कोई मतलब छोटे छोटे बच्चे आती हैं जो जो घर वाले विश्वास करके इनके ऊपर भेजते हैं। पहला खर्चा तो घर वाले ही करते हैं ना, फिर अखाड़े में भेजते हैं, अखाड़े में खर्चा होता है। सरकार तो तब खर्चा करती है ना जब ये मेडल लेके आ जाते हैं, जब ये कैंप में चले जाते हैं, जब सरकार का खर्चा शुरू होता है। सरकार तो अपना श्रेय लेती है बस। रहा जब ये मेडल लेकर आएंगे तो एयरपोर्ट पे वहां खेल मंत्री भी खड़े मिलेंगे, वहां के लोकसभा अध्यक्ष भी मिलेंगे, सब मिलेंगे। फिर उसके बाद के हमने इतना खर्चा किया। ये खर्चे वाली बात कहाँ से आ गई? खर्चा तो पहले घर वाले करते हैं। उनको अभी फेडरेशन में उनका जो करीबी बनाया गया है वो गलत हुआ है। इन्होंने पहले भी आवाज उठाई थी, इनकी आवाज नहीं सुनाई गई, आवाज इनकी दबा दी जाती है। इनको बेवजह के नाम है वादा के नाम करके बुला के और धरना खत्म करवा दिया। ये बच्चे बिल्कुल अपनी जगह ठीक बैठे हैं, और इसको राजनीति का रूप दिया जाने लग रहा है, और कोई भी चीज नहीं है। एक जात के ऊपर मतलब की बात कर दी है, जाट है वो है, अपमान के नाम है। उपराष्ट्रपति जी का जो हुआ है, हम भी यही इंतजार कर रहे हैं कि उपराष्ट्रपति जी जगदीप धनखड़ जी कब इनके लिए 2 शब्द बोले, क्यों ये लड़कियां रो रही हैं। बजरंग पूनिया ने अपना पद्म श्री अवार्ड था जो जो रोड की पटड़ी पर रख दिया है। ऐसा इतिहास में हमने इस 40 साल हो गए हमने कुश्ती में, ऐसा हमने कभी नहीं देखा कि ऐसे रोडों पर दर दर भटकना पड़े, और एक आदमी यहाँ बिल्कुल वो कहे कि दबदबा है दबदबा रहेगा। और ये नाम खुली धमकी है ये। जो पहलवानों जो उनकी बात नहीं मानेगा तो वो नहीं रहेगा, और जो उनकी बात मानेगा वो ही के नाम है रहेगा। और अगर आप ये स्टोरी शुरू से देखते हैं, अगर आप इंटरनेशनल रेसलर नहीं थे, अगर आप कोई दूसरा पार्टी है, अगर आप बस बाय स्टैंडर ये सब देख रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि कुछ दिनों के बाद जब साक्षी मलिक ने रिटायरमेंट अनाउंस किया गया है, दिनों के बाद स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन दिया गया है कि ये एक्सपेंडिचर दिया गया है इस साल के लिए 66 लैक्स 2023 के लिए, ये तीनों रेसलर पे। तो आप ये एक्शन कैसे देखते हैं? यही तो मैं बात कर रहा हूँ ना, जब सरकार तो तब पैसा लगाती है ना जब ये इनके घर वाले जब ये के नाम गरीब घर से आते हैं, पहले ये अखाड़े में जाते हैं, इनका गुरु के नाम सिखाता है इनको, वहां खर्चा होता है।
66 लाख रुपए तो कुछ भी नहीं है सरकार के लिए। तो 66 लाख रुपए इनके घर वालों के लिए बहुत कुछ है। उन्होंने पहले लगा चुके हैं वे। 1 करोड़ रुपए में एक पहलवान बनता है, 20 साल में जाकर एक पहलवान बनता है। 2000 की बात मैं बताता हूँ, मैं भी कैंप में था। वहां पर जो भी यहाँ कोचेज थे वो हमारी डाइट खा जाते थे। मैंने वहां विरोध किया, 11 पहलवान हम वहां से कैंप तोड़ के वहां से पूना से हमने पटियाला शिफ्ट करवाया। उस टाइम उमा भारती जी खेल मंत्री जी, उनको हमने गुहार लगवाया, उन्हें तुरंत एक्शन लिया और कैंप को वहां पर के नाम किया शिफ्ट जो पटियाला। ये चीज तो पहले से होती आ रही है, लेकिन खर्चे की तो इसमें कोई बात ही नहीं है। खिलाड़ी ये तो क्या नाम पहलवान पर कर रहे हैं, लेकिन और खिलाड़ी है उन पर कितना हो रहा है, क्रिकेट में कितना रुपया खर्चा हो रहा है ये देखो ना आप। ये मतलब जो पहलवान जिस उससे पहले मतलब कोई भी बात नहीं आई कि ट्रायल की नहीं आई, कभी किसी चीज की नहीं आई। अब ये कह रहे हैं ये पहलवान भी नहीं है, इनकी पहलवानी खत्म होगी। 20 साल में एक पहलवान बना, देश का नाम ऊंचा किया, उनको बुलाओ, उनसे बात करो, बेटा क्या प्रॉब्लम होगी, कैसे कैसे हुआ, क्या चीज है। प्रधानमंत्री जी ने के नाम, गृह मंत्री जी ने, खेल मंत्री जी ने, या फिर संजय सिंह ने ही फोन के नाम कितना था इनको, भाई क्यों तुम के नाम है के नाम कुश्ती को अलविदा बोल रहे हो, क्यों तुम के नाम ऐसे के नाम पद्मश्री को के नाम कर रहे हो। ना इनकी तरफ से कोई आएगा नहीं, क्यों इनको पता है इनका कैरियर अब बिल्कुल खत्म हो चुका है और नए बच्चों का कैरियर वैसे ही खत्म हो जाएगा। अब कुश्ती खत्म की राह पे है, ये सबको दिख रहा है। रोड पर दर भटक रहे हैं, उनको अपना हक नहीं मिल रहा। All right, Mr. Mukul, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए. With this, we're going to be shifting focus, but remember, we will continue to track all the developments when it comes to this story. Thank you. But right now, we are going to be shifting focus for